Hi everybody, I am Rohit, your IELTS teacher. So आज हम IELTS की नेक्स्ट रीडिंग सॉल्व करने वाले हैं. Obviously हम एक पैसेज ही सॉल्व करेंगे. So the passage is the impact of wilderness tourism. करते हैं इसे शुरू एंड देखते हैं पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं हमारे. So the first set of questions are, read them. Question 1 to 3. Reading passage 10 has 3 paragraphs A to C. Choose a correct heading for each of the section of list from the list given below. So ये हमारा मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन है. इसको हम कैसे करते हैं? अब देखो टोटल 3 सेक्शंस दिए A, B and C और टोटल 6 सेट्स ऑफ हेडिंग दी हुई है. दैट मीन्स 3 जो हेडिंग लिस्ट है वो इनकरेक्ट दी, 3 हेडिंग्स इनकरेक्ट दी हुई और 3 सही दी हुई. इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, कभी भी हमें सीधा लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं पढ़नी होती, हमें सीधा ही पैराग्राफ पढ़ने होते हैं जहाँ की हमें ये हेडिंग फाइंड करनी है. उस पैराग्राफ का हम स्किम करके देखते हैं कि उस पैराग्राफ में बात क्या हो रही है. सो जब हम बात चेक करते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें चेक करते हैं. सो लेट्स क्विकली गो अप एंड सी व्हाट डू वी हैव टू चेक. ना मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे बता देता हूँ. जब भी हम हेडिंग चेक करेंगे, पैराग्राफ को ही पढ़ेंगे, तो उस पैराग्राफ में 2 चीज़ हम मेनली चेक करेंगे कि इंट्रोडक्शन, लेट्स से फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स. सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू चेक इज फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स, ताकि हमें पता लग जाए मेन आइडिया क्या है. एंड सेकेंडली जो चीज़ हम देखेंगे वो होगी हमारी आइडिया. अब आइडिया भी 2-3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइडियाज एंड नेगेटिव आइडियाज. देन वी ऑल्सो हैव नेगेटिव आइडियाज. काफ़ी बार हो सकता है कि नेगेटिव आइडियाज दिए हों. आपको चीज़ समझ आएगी धीरे धीरे. काफ़ी बार होता है जो आइडिया आपका है वो कोई रिजल्ट बता रहा है, या काफ़ी बार कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, काफ़ी बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, या काफ़ी बार जस्ट प्रोसेस बता रहा है. सो ये आइडियाज़ देखने ज़रूरी हैं. ओनली देन वी कैन फाइंड द राइट सेट ऑफ हेडिंग. सो हम क्विकली चलते हैं पैराग्राफ्स में. पहली चीज़ जो हम देखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पे ज़्यादा फोकस होगा. सारा पढ़ना है लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में ज़्यादा फोकस होगा हमारा. उसके बाद हम आइडिया ज़रूर देखेंगे कि आइडिया क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या रिजल्ट है, एग्जाम्पल है. सो लेट्स क्विकली गो एंड रीड सेक्शन ए. सो पूरे इसमें 3 सेक्शंस दिए हैं हमें और इन सेक्शंस की हमें हेडिंग फाइंड करनी है. लेट्स रीड दिस. The market for tourism in remote areas is booming as never before. तो ये बता रहे हैं टूरिज्म की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. It's a positive idea. Countries all across the world are actively promoting their wilderness regions, such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands, and wetlands, to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious. By definition, wilderness tourism requires little or no initial investment. But that does not mean that there is no cost. As a 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile, i.e. highly vulnerable to abnormal pressures, not in just their terms of their ecology, but also in terms of culture of their inhabitants. The 3 most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of proportion of the Earth's surface they cover, are deserts, mountains, and Arctic areas. An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. Tourists are drawn to these regions by their natural landscape beauty and the unique cultures of their indigenous people, and poor governments in these isolated areas have welcomed the new breed of adventure tourists, grateful for the hard currency they bring. For several years now, tourism has been prime source of foreign exchange in Nepal and Bhutan. Tourism is also a key element in the economics of Arctic zones such as Lapland and Alaska, and in desert areas such as Ayers Rock in Australia and Arizona's Mountain Valley. So technically, if we see,
इसमें 3-4 चीज मेन बात हो रही है. Obviously it's a positive idea. This whole thing carries a positive idea overall, and it is talking about tourism and its expansion in remote areas. In this paragraph, there are also some challenges and the areas where this thing actually happens. Now, let's see. Tourism is also a key element in the economics of Arctic zones, such as Alaska, in desert areas such as Ayers in Australia. So they are talking about, and they are also connecting in the end wilderness tourism with areas which have strange climate. So let's see the expansion of international tourism in recent years. So there is nothing like international tourism. How local communities can balance their own needs with the demands of wilderness tourism. They are not talking about local communities, fragile regions, and the reasons for the expansion of tourism there. So obviously, they are talking about the third thing: fragile regions and the reasons for the expansion of tourism there. Traditional methods of food supply. Not talking about food supply. Some of the disruptive facts of wilderness, they are not talking. This is a negative idea, so they are not talking about anything negative there. The economic benefits of mass tourism. So it is a positive, beneficial idea, and they're not talking about any benefit. So this is how we find our answer. Let's move to next section and let's read that also. So quickly let's go to section 2. And this time we are going to make it a little quick. So करते हैं इसको. Once a location is established as a main tourist destination, the effects on the local community are profound. So now they're talking about local community and the effects. These can be negative or positive effects. Let's see. Banana farmers, for example, can make more money in a few weeks working as a porters for foreign trackers than they can in a year working in their fields. It is not surprising that many of them give up their farm work, which is thus left to other members of the family. In some hill regions, this has led to a serious decline in farm output and change in the local diet because there is insufficient labor to maintain terraces and irrigation systems and tend to crops. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods. In Arctic and desert societies, year round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. However, as some inhabitants become involved in tourism, they no longer have time to collect with wild food. This has led to increasing dependence on bought food and stores. Tourism is not always the culprit behind such changes. All kinds of wage labor or government handouts tend to undermine traditional survival systems. Whatever the cause, the dilemma is always the same. What happens if these new external sources of income dry up? The physical impact of visitors is another serious problem associated with the growth of adventure in tourism. So they have mentioned two negative aspects. Much attention has been focused on erosion along major trails, but perhaps more important are the deforestation and impacts on water supply. So they are giving negative impacts of this. Provide tourists with cooked food and hot showers. In both mountains and deserts, slow growing trees are often the main sources of fuel, and water supplies may be limited or vulnerable to degradation through heavy use. So, in the end, they have talked about only the negatives of uh, using, outer trans. Some of the disruptive effects of wilderness tourism. So by default, this is the fifth one because this only heading contains negative idea, and the whole section was completely negative. Negative. Let's read. So that's how we trick out and find the answers. Let's see. Stories about the problems of tourism have become legion in the last few years. Now they're talking about problems and these stories. Yet it does not have to be a problem. Although tourism inevitably affects the region in which it takes place, the cost to these fragile environments and their local cultures can be minimized. Indeed, it can even be a vehicle for invigorating local cultures, as
has happened with the Sherpas of Nepal's Khumbu Valley with an alpine village. So they are talking, the main idea here is reinvigorating the culture with wilderness tourism. So this is kind of an idea transition. So ऐसा IELTS रीडिंग में बहुत बार होता है, जैसे पूरा आइडिया हाँ पुराने वाले में सेक्शन में नेगेटिव था, सो ऑल ऑफ अ सडन वो पॉजिटिव आइडिया नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं शुरू में थोड़ा बहुत नेगेटिव बोलेंगे और उसे कट डाउन करके, लेट्स से कैसे कट डाउन करेंगे, ऐसे वर्ड यूज़ करके, ऑल दो जैसे वर्ड हो गए, सो ऑल दो नेगेटिव वर्ड होता है और ये नेगेटिव आइडिया को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। सो उसके बाद जो भी आइडिया है हमारा पॉजिटिव शुरू हो गया। सो दैट्स हाउ ये ट्रिकी रही आइल्स में चलती है कि अगर नेगेटिव आइडिया चला है तो ऑल ऑफ अ सडन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है या सेक्शन है वो थोड़ा शुरू में तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन हो सकता है अगर उसमें ऐसे कोई वाइज यूज़ किए हो, ऑल दो जैसे, बट जैसे, हाउवर जैसे, तो उसके बाद आइडिया चेंज हो जाता है। सो क्योंकि पुराना आइडिया नेगेटिव था तो उसके बाद वाला आइडिया सारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी चेक द आइडियाज ऑल्सो व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग। सो अगर सेम चीज़ अगर आप अपनी राइटिंग में भी अप्लाई करो, सेम आइडिया ट्रांजिशन दिखाओ, तो बहुत अच्छी आपकी राइटिंग भी हो जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम थिंग। एंड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म ऑपरेटर्स आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट देयर एक्टिविटीज बेनिफिट द लोकल पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म। इन द स्विस एल्प्स, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. So now they are talking about tourism with local economy. Local concern about the rising number of second home developments in the Swiss space, the ANOT, resulted in limits being imposed on their growth. There has been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the locals with a reliable source of income that does not depend on outside visitors. Many of the Arctic tourist destinations have been exploited by outside companies who employ transient workers and repatriate most of the profits to their home base. But some Arctic communities are now operating tour business themselves, thereby ensuring that benefits accrue locally. So ये बात कर रहे हैं कि इससे फ़ायदा भी हो सकता है लोकल लोगों को, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमा के अपने होम बेस कंट्री पे ले जा रही है। बट ये चीज़ क्या हो सकती है कि अब देखो यहाँ पे बट लगा दिया। अब पुराना आइडिया क्या था कि कंपनी फ़ायदा उठा रही है, अब यहाँ पे बट लगा दिया। ये हमने डिस्कस किया था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव वाइज है, तो आइडिया चेंज कर देता है। तो पहले बात ये थी कि भाई कंपनीज फ़ायदा उठा रही है, अब इन्होंने बट लगा रही है, मतलब लोकल लोग अब फ़ायदा उठाएंगे। दैट्स हाउ द आइडियाज चेंज इन आइल्स। अब इसी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। For instance, a native corporation in Alaska is employing local people is running an air tour from Anchorage to Kotzebue, where tourists eat Arctic food, walk on the tundra, and watch local musicians and dancers. Native people in the desert regions of the American Southwest have followed similar strategies, encouraging tourists to visit their pueblos and reservations to purchase high-quality handicrafts and artwork. The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewelry. Too many people living in fragile environments have lost control over their economies, their culture, and their environment when tourism has penetrated their homelands. Really restricting tourism cannot be a solution to the imbalance because people's desire to see new places will not disappear. Instead, communities in fragile environments must achieve greater control over tourism ventures in their regions. So technically, आखिरी में आते आते इन्होंने ये बात कर दी है कि भाई लोकल कम्युनिटी को अब कंट्रोल लेना चाहिए ताकि वो इस डिमांड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर पाए। सो दैट इज अ थिंग। पढ़ते हैं फटाफट। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, ये तो इंटरनेशनल टूरिज्म की तो बात ही नहीं है। हाउ लोकल कम्युनिटीज कैन बैलेंस देयर ओन नीड्स विद द डिमांड्स ऑफ, सो यही बात हो रही है कि लोकल कम्युनिटीज को आखिरी में भी यही बात हुई करना चाहिए। सो दो इसका आंसर हो गया हमारा। सो करते हैं नेक्स्ट। बहुत ज़रूरी है आइडिया ट्रांजिशन देखना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अब हमने पूरा जो पैसेज पढ़ लिया, तो जब हम नेक्स्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पढ़ेंगे तो आंसर्स कहीं से भी हो सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये वाला आइडिया कहाँ पे डिस्कस हुआ है। सो फार नाउ जितने भी हमने रीडिंग एनालिसिस किए हैं, तो ये चीज़
जरूर चेक किया है कि आइडिया कहाँ पे था। सो दैट इज द सेम थिंग विच वी हैव टू अप्लाई हियर ऑल्सो। करते हैं इसको सोल्व। लेट्स रीड। The low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive to many countries. अब यहाँ पे रीजन क्या लिखा है? The low financial cost of setting up wilderness tourism. क्योंकि इसे सेटअप करना बहुत मुश्किल है, ये मैनी कंट्रीज के लिए क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया। तो हमें ये चीज देखनी, क्या ये लो कॉस्ट ऑफ सेटिंग की वजह से अट्रैक्टिव हो गया? अगर इसी की वजह से अट्रैक्टिव हुआ होगा तो यस, अगर इसकी वजह से नहीं हुआ होगा तो नो। अगर अट्रैक्टिवनेस की बात ही नहीं होगी तो दैट इज नॉट गिवन। सो ये सेक्शन ए में बात हुई थी, इफ आई रिमेंबर। देखो थोड़ी बहुत रिटेंशन पावर होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये बात कहाँ पे की थी। तो हम बात कर रहे हैं इसकी लो कॉस्ट होने की। तो लो कॉस्ट की बात यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे इस सेक्शन में। द अट्रैक्शन ऑफ दिस एरियाज इज ऑब्वियस बाय डेफिनेशन। विल्डरनेस टूरिज्म रिक्वायर्स लिटिल और नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दिया यस, ये अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज ये बहुत कम कॉस्ट पे हो जाती है। सो दिस थिंग इज ट्रू बाय डिफॉल्ट। एक आंसर मिल गया हमें। लेकिन इसमें लिखा है ट्रू अट्रैक्टिव टू मैनी कंट्रीज। क्या ये मैनी कंट्रीज के लिए अट्रैक्टिव है? ये बात बोली है। लेट्स क्विकली चेक इट। सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए, अदरवाइज गलत हो सकता है। टू हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट। Let's see. Countries all across the world are actively promoting their wilderness regions such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious. Obviously तो यहाँ पे these areas लिखा हुआ है, तो these areas मतलब obviously देखो ये pronoun का use है। मैं हमेशा आइल्स रीडिंग सॉल्व करते हुए आपको ये चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि छोटे छोटे वर्ड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कैरी करते हैं। सो ये these जो वर्ड है ये इन एरियाज, माउंटेन्स एंड आर्कटिक लैंड्स को डिफाइन करता है, एंड इवन ये इन कंट्रीज को भी डिफाइन करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये छोटे छोटे प्रोनाउन के ऊपर ध्यान जरूर दें जब आप वेरीफाई करें आंसर्स अपने या फाइंड भी करें तब भी। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली दीज एरियाज के लिए वो अट्रैक्टिव हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली कंट्रीज के लिए वो अट्रैक्टिव हो रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो आइल्स की रीडिंग सिर्फ सिनोनिम के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये बट, हाउएवर, ऐसे कनेक्टर्स जो हो गए, कोई डिवाइसेस जिन्हें लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, इन पे बहुत डिपेंड करता है। प्लस आपकी प्रोनाउन की जो नॉलेज है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आई वुड से आइडिया लिंकेज के ऊपर आपकी रीडिंग पूरी डिपेंड करती है कि आइडिया कैसे चल रहा है और उस आइडिया को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर पूरी चीज़ मैटर करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। Let's see. Deserts, mountains and Arctic regions are examples of environments that are both ecologically and culturally fragile. अब यहाँ पे देखो बात क्या लिखी है? Deserts, mountains and Arctic regions are examples of environments. ये तीन regions हैं that are both ecologically and culturally fragile. हमेशा जब भी हमें स्टेटमेंट देखनी होती है तो हम वर्ब के बाद ही देखते हैं, मतलब जो सच में वैल्यू कैरी करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा था मेक्स इट अट्रैक्टिव टू मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पे हमारा आंसर फंसा था। इसके बाद लिखा है आर बोथ इकोलॉजिकली एंड कल्चरली फ्रेजाइल। तो हमें देखना पड़ेगा ये तीनों रीजन्स हैं, ये इकोलॉजिकली भी फ्रेजाइल होने चाहिए और कल्चरली भी फ्रेजाइल होने चाहिए। अब इकोलॉजिकली मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड एंड कल्चरली मतलब कल्चर से रिलेटेड। चलो इसको रीड करते हैं एंड फटाफट फाइंड करते हैं। ये दोनों होनी चाहिए, अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो वो नॉट गिवन हो जाएगी, या अगर उसमें बोला हो दोनों ही नहीं है तो तब भी नॉट गिवन होगी। अब ये वाला आइडिया जो हमारा था ये पहले वाले पैराग्राफ में था, या हो सकता है दूसरे में हो क्योंकि इसमें भी नेगेटिव बात हुई थी। कोई नहीं, फटाफट चेक करते हैं अपना विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे होगा, ये रहा, यहाँ पे लिखा होगा
but that does not mean that there is no cost. These regions are fragile, highly vulnerable to abnormal pressures. यहाँ पे बोला हुआ है ये बात, सेक्शन ए में बात हुई है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिकग्नाइज दीज रीजन्स। अब ये दीज रीजन्स अगेन आपके ऊपर ये क्वेश्चन आया होगा, दीज रीजन्स, अब इसका क्या मतलब है? दीज अगेन इन तीनों वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन्स, आर्कटिक लैंड्स एंड डेजर्ट्स एंड स्मॉल आइलैंड्स जो हमें वहाँ मिले थे। तो ऑब्वियसली ये बात यहाँ पे है, दीज रीजन्स आर फ्रेजाइल, ऑब्वियसली फ्रेजाइल है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ नहीं है कि क्या ये इकोलॉजिकली, पढ़ते हैं यस यस लिखा हुआ है, आगे लिखा है दीज आर फ्रेजाइल नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर इकोलॉजी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर ऑफ देयर इनहैबिटेंट्स। सो ये पूरी बात लिखी हुई है कि हाँ भाई सिर्फ इकोलॉजी के तौर पे नहीं बल्कि इनके इनहैबिटेंट्स के जो कल्चर है उसके ऊपर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रोनाउन के ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पे लिखा था दीज रीजन्स, और जब तक आपको दीज रीजन्स की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दीज एक्चुअली रेफर टू माउंटेनियस और वो रीजन्स। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट प्रोनाउंसिंग व्हाइल सॉल्विंग रीजन। सो फटाफट आते हैं एंड आंसर लगाते हैं ट्रूज का, नेक्स्ट रीड करते हैं। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, yes, we can do it very quickly. तो ये हो गया जी ट्रू। 6 पढ़ते हैं। विल्डरनेस टूरिज्म ऑपरेट्स थ्रू आउट द ईयर इन फ्रेजाइल एरियाज। तो कह रहे हैं विल्डरनेस टूरिज्म पूरे साल के लिए होता है। अब ये देखना है विल्डरनेस टूरिज्म पूरे साल के लिए होता है, ये वाली बात कहाँ पे हुई थी? लेट्स क्विकली रीड एंड सर्च इट। विल्डरनेस टूरिज्म पूरे साल के लिए होती है, सीजन वाली बात कहाँ पे हुई थी? ये भी मेरे ख्याल से पहले वाले में ही बात हुई थी। यहाँ पे क्विकली आगे आते हैं। क्या ये पूरे साल के लिए है? बट द 3 most significant years of fragile environment in these respects and also in the terms of proportion of earth's surface they cover the desert. An important characteristic is their marked seasonality. ये लिखा है यहाँ पे, an important characteristic is their marked seasonality with harsh conditions. अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, their marked seasonality. अब आप कहोगे यार ये their क्यों मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, आप देर का मैं कलर क्यों चेंज करने वाला हूँ, आप तो यही कहोगे। तो बहुत ज़रूरी है इस देर का मतलब आपको पता होना। ये देर है आपका प्रोनाउन एंड इसका मतलब है देर। देर मतलब विल्डरनेस टूरिज्म, ठीक है, मतलब इन एरियाज की विल्डरनेस टूरिज्म होने को इन्होंने देर से रिप्रेजेंट किया। So an important characteristic is their marked seasonality with harsh conditions prevailing for many months each year. मतलब काफ़ी महीनों के लिए हार्श कंडीशन रहती है जिसकी वजह से ये सिर्फ सीजनल ही हो सकती है विल्डरनेस टूरिज्म, ये पूरे साल तक नहीं हो सकती। सो विद दिस रीजन हम इसको मार्क करेंगे फॉल्स। सो ये छोटे छोटे नाउन प्रोनाउंस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए, रीडिंग के लिए प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पक्की करनी है, ओनली देन यू कैन सोल्व। काफ़ी लोग कहते हैं उन्हें वोकैब बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ये अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ वोकैब से काम नहीं बनेगा, आपको अपने प्रोनाउंस एंड आइडियाज़ के ऊपर प्लस कोहेसिव डिवाइसेस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करते हो बहुत सिंपली आपकी रीडिंग भी सॉल्व हो जाएगी। सो इसको लगाते हैं फॉल्स क्योंकि ये बात गलत निकली, ये होगी फॉल्स। पूरे साल के लिए नहीं होती, हार्श कंडीशन की वजह से वो सिर्फ सीजनली ही अवेलेबल होती है। लेट्स सोल्व नेक्स्ट वन। आना बहुत स्लो कर रहे हैं हम, इसका एक रीज़न मेरा कंप्यूटर भी है, हाँ थोड़ा हम समझ के भी कर रहे हैं तो इसलिए
थोड़ा टाइम भी लग रहा है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोसेस समझो, सच में रीडिंग होती कैसे। और आप इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करते टाइम। ऑब्वियसली मैं तो बहुत अभी बोल रहा हूँ, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। The spread of tourism in certain hill regions has resulted in a fall in the amount of food produced locally. तो ये पढ़ते हैं, The spread of tourism in certain hill regions has resulted in a fall in the amount of food produced locally. क्वेश्चन समझ नहीं पाया, पढ़ते हैं दोबारा। The spread of tourism in certain hill regions has resulted in a fall of amount of food produced locally. तो ये कह रहे हैं किसी किसी हिल रीजन्स में टूरिज्म की वजह से जो लोकल फूड प्रोड्यूस हो रहा था वो कम हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, ये वर्ब के साथ है हैज़ रिजल्टेड इन फॉल। तो यहाँ पे हमारा आंसर डिपेंड हो रहा होगा पूरा। हमेशा याद रखना वर्ब के साथ ही हमारा आंसर मिलता है। तो यहाँ लिखा है हैज़ रिजल्टेड इन ए फॉल, मतलब कह रहे हैं विल्डरनेस टूरिज्म की वजह से फूड जो लोकली प्रोड्यूस था वो कम हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। और देखो सच में कम हुआ होगा तो ट्रू है, बढ़ गया होगा तो फॉल्स, अगर गिरने बढ़ने की बात ही नहीं होगी तो नॉट गिवन। लेट्स रीड। अभी बोल रहे हैं हिल रीजन्स में टूरिज्म जो बढ़ा उसकी वजह से फूड पे क्या फ़र्क पड़ा। ये वाली बात थी जी हमारी सेकंड सेक्शन में, इफ़ आई रिमेंबर, बिकॉज वहीं पे नेगेटिव बात कही हुई थी। फर्स्ट में इसका कोई मेंशन नहीं था एज फार एज आई रिमेंबर। सो सेकंड वाला पढ़ते हैं। हेयर बी में ही है, यहाँ पे हिल फार्मर्स वाला मैंने कुछ पढ़ा था। अब मुझे कैसे पता ये बात, क्योंकि नेगेटिव वाली बात यहीं पे हुई थी सारी। So when hill farmers, for example, can make more money in few weeks working as porters or foreign trekkers, they can in a year working in their fields. It is not surprising that many of them give up their farm work, which is thus left to other members of the family. In some hill regions, this has led to serious decline in farm output and a change in लोकल डाइट। तो यहाँ पे बात हमारी हुई है कि हाँ भाई हिल एरिया में इस टूरिज्म की वजह से जो वहाँ का फूड आउटपुट है वो कम हो गया है। तो सीधी सीधी बात हमें मिल गई वहाँ पे। सो दिस थिंग इज ट्रू। तो हम आ गए यहाँ पे। सो दिस थिंग इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हमें अपना आंसर मिल गया। Now let's see. Traditional food gathering in desert societies was distributed evenly over the year. तो यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे हमारी वर्ब मिल गई, यहाँ पे आंसर मिलेगा was distributed evenly over the year। अब इवनली का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमारी थोड़ी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। इवनली का मतलब होता है बराबर। तो जो भी फूड गैदरिंग थी डेजर्ट सोसाइटीज में वो पूरे साल भर समान ही रहती थी, वो बदलती नहीं थी, मतलब सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स वर गैदर्ड ओवर द ईयर। तो इसे फटाफट हम रीड करते हैं। अब डेजर्ट सोसाइटीज की बात कहाँ हो रही है, ये बी में ही बात है, क्योंकि ये भी नेगेटिव आइडिया कैरी कर रही है स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली हमारे बी सेक्शन में ही सारी नेगेटिव बातें हुई हैं। तो फटाफट चलते हैं बी में और डेजर्ट की बात करते हैं। ये तो सी की बात थी, अब डेजर्ट ढंग से देखेंगे डेजर्ट की बात कहाँ पे है। ये रहा। In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting food over a relatively short season.
यहाँ पे चीज़ लिखी है जी, यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से मेन आंसर लिखा है कि आप जो कलेक्टिंग करते हो फूड की, वो सिर्फ बहुत ही शॉर्ट सीजन के लिए होती है। मतलब पूरे साल में सिर्फ बहुत छोटे समय के लिए, लेट्स से 1, 2, 3 महीने के लिए आप फ्रूट या फिश या ये सब चीज़ खाना वाना अपना जमा कर सकते हैं। जैसे चींटियाँ करती है, गर्मियों में जमा कर लेती है और सर्दियों में उसे यूज़ करती है, तो वैसे ही डेजर्ट एरियाज़ में बहुत मुश्किल होता है और पूरे साल में कुछ ही महीने या कुछ ही टाइम ऐसा होता है इसमें आप बहुत छोटे सीजन में ही आप खाना जमा कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द थिंग। सो दैट मीन्स हमारी वो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि वो स्टेटमेंट बोलती है कि डेजर्ट एरियाज में पूरे साल भर बराबर, इवन वर्ड था वहां पे, बराबर कलेक्शन हो रही है। मैं इसको इवन को कर देता हूँ, मतलब हर महीने बराबर, हर दिन बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि पूरे साल में, पूरे साल नहीं बल्कि बहुत ही छोटे पीरियड के लिए फूड गैदरिंग हो पाती है, फूड कलेक्टिंग हो पाती है। तो गैदरिंग का उन्होंने सिनोनिम दिया वहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज सच में पूरे साल नहीं बल्कि कुछ ही टाइम के लिए जमा हो सकती है चीज़ें। लेट्स रीड नेक्स्ट वन। गवर्नमेंट हैंडआउट्स डू मोर डैमेज देन टूरिज्म डज टू ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ फूड गैदरिंग। तो ये चीज़ बोलिए कि भाई जो गवर्नमेंट हैंडआउट्स होते हैं, मतलब जब गवर्नमेंट लोगों को पैसे देती है तो वो ज़्यादा डैमेज करती है। अब ये क्या चीज़ है, कंपैरेटिव सेंटेंस दिया है, इसमें लिखा डू मोर डैमेज देन टूरिज्म डज। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। देखो काफ़ी बार ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कंपैरिजन के ऊपर भी होते हैं, तो इसके ऊपर हमारी एक डिटेल्ड क्लास है, आई मीन दैट इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ आवर पेड क्लासेस, जिसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि हाँ यार, कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस किस किस लॉजिक पे होते हैं। तो उन लॉजिक में से एक होता है कंपैरिजन वाला। तो इसमें कंपैरिजन दिया है कि जो गवर्नमेंट हैंडआउट्स है वो ज़्यादा डैमेज करते हैं ट्रेडिशनल पैथड्स ऑफ टूरिज्म से। तो ये बात करते हैं नेगेटिव में ये, क्योंकि अफेक्ट की बात हो रही है, तो पैरा सेक्शन 2 में ही बी में ही बात हुई है अफेक्ट वाली। तो सेक्शन बी में इसको फटाफट हम पढ़ते हैं और सेक्शन बी में ही हमें इसका आंसर भी मिलेगा। तो इसमें कंपेयर किया है इन्होंने गवर्नमेंट हैंडआउट्स को और उनको ये गवर्नमेंट हैंडआउट्स की बात यहाँ पे है। All kinds of wage labor or government handouts tend to undermine traditional surviving system. Whatever the cost, the dilemma is always the same. देखो यहाँ पे लिखा है tourism is not always the culprit behind such changes. All kinds of wage labor or government handouts tend to undermine traditional survival systems. Whatever the cost, the dilemma is always the same. अब देखो यही बात हो गई, यहाँ पे पूरी बात हुई है कि सिर्फ टूरिज्म ही लोकल लोगों की लाइफ स्टाइल या उनके खाने वाली चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि गवर्नमेंट हैंडआउट भी करते हैं। लेकिन अभी तक और इसमें यहीं तक ही बात हुई है गवर्नमेंट हैंडआउट की, इससे अलावा आगे बात नहीं हुई है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ है कि टूरिज्म ज़्यादा अफेक्ट करता है या गवर्नमेंट हैंडआउट ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ये बात ही नहीं हुई। इंस्टेड दे हैव जस्ट सेड बोथ ऑफ देम अफेक्ट द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। इन दिस केस ये स्टेटमेंट नॉट गिवन हो जाएगी, बिकॉज कंपैरिजन तो हमें दिया ही नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन, जब एब्सेंस ही है कंपैरिजन के, तो हम जज नहीं कर सकते कि इनफैक्ट किसका इफेक्ट ज़्यादा है। सो लेट्स क्विकली सी दैट थिंग। तो हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट हो गई जी हमारी नॉट गिवन, बिकॉज हमें कंपैरिजन तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे जस्टिफाई करें इसका आंसर को। सो क्विकली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हमें मिल गया है जी 10 to 13, ये फिलअप से बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी ये। फटाफट करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम पढ़ पाए अच्छे से। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सो दिस इज नॉन एज टेबल। हमने पिछली वीडियो में टेबल भी सॉल्व की थी। टेबल में सिंपल लॉजिक यही होता है कि इसमें 2 कॉलम से आपको देखना है कौन से कॉलम में चीज़ें दी हुई है और कौन से कॉलम में नहीं दी हुई है, और आपको क्या फाइंड करना है।
लिसनिंग में भी सिमिलर क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो लेट्स सॉल्व दैट। लेट्स सी टेबल किस बारे में, और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, सिर्फ वन वर्ड ही लिखना है। लेट्स सी द पॉजिटिव वेज इन विच सम लोकल कम्युनिटीज हैव रिस्पॉन्डेड टू टूरिज्म। अब पॉजिटिव वे है जिसमें लोकल कम्युनिटीज ने टूरिज्म के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। अब ये लोकल कम्युनिटीज एंड रिस्पॉन्ड वाली बात सेक्शन 3 में हुई है, और वो भी बीच में कहीं हुई है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज ने रिस्पॉन्ड किया है, मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे वहाँ पे। ऑब्वियसली ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे। सो लेट्स रीड दिस। पीपल, लोकेशन, तो इसमें स्विस की बात है, आर्कटिक कम्युनिटीज की बात है, एक्रोमा की बात है, सैन एंड नोवाजो एंड होपी की बात है। तो पहले हम देखेंगे स्विस पेज ऑफ डैन नॉट रिवाइव प्रोडक्शन ऑफ। अब देखते हैं स्विस लोगों ने किसकी प्रोडक्शन को रिवाइव कर दिया, मतलब दोबारा से शुरू कर दिया। फटाफट देखते हैं। ये सेक्शन सी में बात हुई है, पॉजिटिव आइडिया है, दैट इज वाई, और सेक्शन 3 में पॉजिटिव आइडिया था हमारा, एंड लोकल कम्युनिटीज की बात थी, इसलिए हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपको पता लग जाए, ये कुछ की चीज़ें पता लग जाए, फिर आपके लिए आइल्स रीडिंग बहुत ही सिंपल है, फिर आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अब पढ़ते हैं। अब स्विस की बात कहाँ पे है, स्विस लोगों की बात कहाँ है, यहाँ पे बात ही नहीं हुई है। लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे दिया होगा, अरे यहाँ पे बात तो हुई है। Giacomo and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery business. So इन्होंने Giacomo and San इन्होंने pottery business शुरू किया है। Let's read this quickly. सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिलता जाए उसे लगाते जाओ, क्योंकि फिर आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसी होता है कि पहला आंसर नहीं मिलता है, बीच में कहीं मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे फाइंड कर दोगे तो आपको की लिंक मिल जाएगी सबके साथ, फिर आसानी से फाइंड करो, टेंशन नहीं लेनी एग्जाम में। सो लेट्स सी। Giacomo प्रोड्यूस एंड सेल पॉटरी, तो 12वें का आंसर हमारा पॉटरी आएगा। लिख लेते हैं भाई कि 12वें का अपना आंसर है पॉटरी। अब स्विस पेज ऑफ दे आर नॉट एन आर्कटिक कम्युनिटीज, अच्छा आर्कटिक कम्युनिटीज भी दी है हमें, तो इसे पढ़ते हैं कहाँ पे ये बात हुई है हमारी, फटाफट पढ़ते हैं इसको। आई नो ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन इन रियल एग्ज़ाम इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास शीट होगी या फास्टर कंप्यूटर होगा। मेरा कंप्यूटर तो एक्सेप्शन है, बहुत स्लो चलता है। सो यही चीज़ है जो है। आप देखो ये कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पढ़ते हैं। For instance, a native corporation in Alaska employing local people is running on air tour from Antarctica, where tourists eat Arctic food, walk on the tundra, and watch the local museums and dances. Native people in the desert regions of American Southwest have followed similar strategies. Anchoring to the Pablos, यहाँ पे बात हुई, इससे पहले बात हुई होगी। बट सम आर्कटिक कम्युनिटीज, यहाँ पे आंसर हुआ है। रुको, स्विस के ऊपर बात हुई है कुछ, स्विस 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 स्विस, यहाँ पे ऊपर बात हुई होगी, यहाँ पे बात हुई है। इट कैन इवन बी वेरी विकल्प इन लोकल कम्युनिटीज happened with Sherpas of Nepal's community and fine villages, and a growing number of adventure tourism operators are trying to in the Swiss Alps। यहाँ पे हमें एक आंसर मिल गया अपना, स्विस एल्प्स की बात हमें मिल गई, बिकॉज एक मिल जाता है फिर सारे मिलने आसान हो जाते हैं। Communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with local economy. Local concern about a rising number of second home developments in the Swiss space they are not resulted in limits being imposed on their growth. There has been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the local with a reliable source of income that does
नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड विजिटर्स। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आंसर क्वेश्चन क्या था। तो स्विस ने तो अपना चीज़ प्रोडक्शन शुरू कर लिया है, ये बात थी। देखते हैं चीज़ ने क्या किया है। सो रेनेसांस है और रीइनविगोरेट शायद ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर है रिवाइव द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। सो ऑब्वियसली दैट इज द आंसर। आर्कटिक कम्युनिटीज ऑपरेट डैश बिजनेसेस। तो देखने आर्कटिक कम्युनिटीज कौन कौन से बिजनेस ऑपरेट करती है। लेट्स रीड दिस। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे अपने आंसर्स, वरना हम हो जाएंगे कंफ्यूज। सो लिखते हैं भाई अपने अपने आंसर्स। यस, सो अपना 11 हो जाएगा जी। तो जाएंगे रहा भाई तू नीचे चले जा 2 मिनट के लिए, ताकि मैं अपने आंसर्स लिख लूँ। सो भाई हमने सर्च किया है अभी तक, क्या क्या आंसर सर्च किए। तो हमने सर्च किया 10 का, क्या सर्च किया है, रिवाइव प्रोडक्शन ऑफ चीज़। तो उन्होंने चीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और हमें 12 का पता लग गया है। 12 का क्या है हमारा, दे प्रोड्यूस एंड सेल पॉटरी। अब आर्कटिक कम्युनिटीज कौन सा बिजनेस चलाते हैं वो देख लेते हैं एक बार। और नवाजो एंड होपी क्या सेल करते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट, फिर क्लोज करेंगे इसे। आई नो थोड़ा सा इसकी वजह से टाइम लग रहा है मेरे लैपटॉप की वजह से, बट ये बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हो भी जाएगा। नवाजो एंड हॉपी ग्रुप्स हैव बीन सेलिंग सिमिलर सक्सेस विद ज्वेलरी। सो नवाजो और हॉपी तो भाई ज्वेलरी बेच रहे हैं। और नेक्स्ट हमने पता करना है कि आर्कटिक वाले क्या कर रहे हैं। आर्कटिक कम्युनिटीज आर नाउ ऑपरेटिंग टूर बिजनेसेस देमसेल्व्स। सो टूर बिजनेस कर रहे हैं वो। और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है बहुत सिंपली। सो आज मैंने थोड़ा सा स्लो भी किया था ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार आइल्स रीडिंग में सच में क्या होता है। सो आज आपने देखा होगा जो जितने भी आंसर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं मोर लेस ऐसे ऐसे वर्ड्स पे, मोस्ट कंपैरिजन वाले वर्ड्स के ऊपर, या दे दीज देयर, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स के ऊपर कभी आइल्स रीडिंग डिपेंड कर ही नहीं रही। बट हाउएवर ऐसे ऐसे वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी आइल्स रीडिंग। अगर आप इन चीज़ों को समझ ले तो आपका हो जाएगा उद्धार। अगर नहीं कर पाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो आपका हो जाएगा बंटाधार। सो 11 था आर्कटिक कम्युनिटीज ऑपरेट देयर टूर बिजनेसेस। ये लो जी। 12th आंसर इज पॉटरी। बहुत हैंग हो रहा है मेरा कंप्यूटर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। पॉटरी एंड जो हमारा, ये देखो फिर इधर पहुंच गया। ओह सॉरी, मैंने की ही गलत दबा दी। जहां मुझे एंड दबाना है मैं पेज डाउन दबा रहा हूँ। सो माई इट्स नॉट फॉल्ट ऑन माई कंप्यूटर, इट इज़ जस्ट माई मिस्टेक। और 13 क्या है कि ये लोग ज्वेलरी बेचते हैं। ज्वेलरी की स्पेलिंग भूल गया मैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। इसको अगर आप चाहें तो रीडिंग में जाके कंफर्म कर सकते हैं, या बिकॉज मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ तो वर्ड तो बता ही देगा क्या मिस्टेक है स्पेलिंग में। अभी भी मिस्टेक बता रहा है वर्ड। देखते हैं भाई क्या मिस्टेक है ज्वेलरी की। Jewelry. Yes, this is the right spelling. So we got our answers. So that is all how we have solved our reading. So आज हमने बहुत ही अच्छे से समझ के की है चीज़ें। आज हमने की है मैचिंग हेडिंग, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि हाँ भाई शुरू और आखिरी पे हमारा मेन फोकस होता है, बट उससे ज़्यादा बड़ा फोकस होता है आइडियाज़ का, कि आइडिया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिजल्ट बता रहे हैं या काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ दिखा रहे हैं। एंड उसके बाद हमने किए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। उसमें सारे आंसर हमारे छोटे छोटे वर्ड्स पे डिपेंड कर रहे थे। जैसे ये पूरे साल के लिए है ना, तो हमें देखना था कि पूरे साल के लिए है कि नहीं। ये कम हो गया तो हमें देखना था ये कम हुआ कि बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं। मतलब ट्रिकी है आइल्स की रीडिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसमें वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं,
वी कैन से दैट कि हाँ यार बहुत ट्रिकी तरीके से इन्होंने लैंग्वेज दी होती है जो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर वो चीज़ हम सीख जाएं तो हमारे लिए एलसीडी बहुत सिंपल हो जाएगी। So that is all everybody. I'll come with another reading analysis. Keep watching these videos and obviously मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो और फटाफट समझ सकते हो। अब देखो मैं भी कभी YouTube पे वीडियोस देखता हूँ तो मैं तो 2x करके देखता हूँ। I am also expecting the same thing from you people because that is the smartest way of learning things quickly. So was this video full? You can watch it 2x and learn how the things are. Okay everybody, best of luck for today.